was very clear, as Patel sir was sharing with you, that we wanted to interact with the participants on a very typical and very obvious issue, that what about the job opportunities and what about the business opportunities in these times, and maybe after these times, after this pandemic gets over, and we hope it gets over soon. So so what I thought, that I cannot handpick any opportunity for you. I cannot say कि जाओ इधर नौकरी मिल रही है, जाओ ये कर लो और इससे आपको जॉब मिल जाएगा या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता. बट आई कैन orient you, I can help you to prepare for certain industries. I can help you to understand that how you make yourself ready for a particular kind of work or a particular kind of profile. Or for example, I can help you to identify that which are the opportunities in a particular industry, which normally we don't think, we don't get an idea about that. So that is my point. I will only help you to understand the overall situation, and then you can work on those lines and prepare yourself for a suitable opportunities. Right. So just a request that anyone who joins needs to be on mute actually. Fine. So that is what I thought that I will do. Professor, before I'll mute all. You may unmute. Right, sir. Right. Okay. Right. So before we go to these industries or these sectors, which I want to just take an example to help you understand. Let me explain you that we, as an individual job seeker or as an individual entrepreneur or something, someone who wants to start a profession, we are not isolated in this system, in this economic environment. We are very minor part of a very larger economic system, which comprises of a lot of factors which are not in our control. They are beyond our control. Like this whole pandemic, you will agree, is in no one's control. Neither government can claim that it has completely solved the issue after the phase one got over. Nobody can do that anywhere in the world. Not even the superpower like America can do that. So similarly, the economic system is very powerful. It works on its own principles, right? So just to help you to understand, if you are from non-commerce background, that in an economic system, the flow of money is the most powerful equipment. No company, no consumer, no government, or no international agency can dominate the flow of money. Everybody is a party to flow of money. Like for example, when you buy goods from companies, you are giving money to the company. Or for example, when the company hires your labor, takes your resources, takes your technology, takes your land, the company pays you remuneration for that. You use that money to deposit in banks as your savings or invest in stock markets. That money is taken by the companies again. That money is taken by government. Government takes your resources as a household, like firms do, and government gives you salary. Government also takes taxes from you. Similarly, government takes taxes from the firms and government gives subsidy to the firms. So the money keeps rotating in among all these factors. There is international market also, which is connected through import and export, but also through borrowing, lending, through transfer of resources. So everything in today's globalized world is getting connected with each other. So the job opportunities or the business opportunities arise out of these connections, out of these flow of resources, out of this flow of money. Faster the flow of money, faster will be the emergence of new opportunities. Take an example of a village for a case. You compare a village economy, एक पीपल का पेड़ है, कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, कुछ दुकानें हैं, कुछ चहल पहल हो रही है. And take a posh locality, a Lokhandwala complex in Mumbai, or a Crawford market in Delhi, or a similar market in any urban center, and compare the flow of resources, the flow of money, the transactions, the size of the market, and you will see the difference. And that is the difference between a poor economy and the rich economy. That in a poor economy, the flow of this money is very slow, like it is there in a village economy. And in a rich economy, the flow of money is very fast. So this flow of money creates opportunities.
the role of the government is very crucial, that it needs to remove the obstacles and let this money flow very fast. Let there be opportunities of buying and selling. Let there be opportunities of investment. So government's job is this, to ensure that this complete flow is managed well, because only then the new business opportunities and job opportunities will emerge. So whether it is a simple market, a traditional market where you go and buy and sell goods and services, or it is related to e-commerce, that doesn't make any difference. Today, due to technology, digitalization, the geography does not make any difference. The importance is that the market should work. And I will give you this video case which will help you to understand what I am trying to tell you. If you can understand this. Volume, Professor. Okay, just a second. Maybe independently you play. Just a second. Let me see from where I can choose that. I think it should be audible. Is it audible? Yes. जब वेंकट एक कदम आगे बढ़ता है अब वो हिमाचल, तो लक्ष्मी लॉन्ग डिस्टेंस का सोचती है। अहमद गियर बदलता है कपूर साहब आदाब, ऑर्डर डबल कर दीजिए, पैसे भेज रहा हूँ मैं आपको। और कपूर साहब का बिजनेस स्पीड पकड़ता है। मेरा काम अभी बहुत बढ़ गया है। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रीति अपनी पहली मंजिल तक पहुंचती है और शीतल आंटी की लाइफ एक नया मोड़ लेती है। विनोद की कमाई रूट बदलती है। हाँ, हम छोटू की फीस भेज रहे हैं। अच्छा, ठीक छ। और छोटू की गाड़ी निकल पड़ती है। जिंदगी के हाईवे पे कोई अकेले नहीं बढ़ता। So just a disclaimer that I am not promoting any bank here, but it's a very beautiful example of what economic theory I was talking about, the flow of money and the flow of income in an economic system, whether it is a village economy or an urban city economy. जब पैसा घूमता है, पैसा खर्च होता है, तभी नया पैसा भी क्रिएट होता है, तभी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है पैसा कमाने की. So it is very important that people have to spend money and in the process earn more money in the system. This is also related to, for example, a very simple query that, for an economy, RBI prints money or a central bank prints money and spends money in the economy. No, RBI or a central bank will give only a fraction of money. बाकी पैसा अपने आप develop होता है economy के अंदर. So just to explain you again what this talked about, if you see. जब So वेंकट एक this is कदम where आगे the money बढ़ता है comes in first. This person receives a bonus amount of 1 lakh rupee, and the couple decides to go on a vacation. अब वो हिमाचल, And because they're So going Lakshmi- on a vacation, they start buying. They start buying some goods like this woolen clothes. लॉन्ग डिस्टेंस का सोचती है। And because Ahmed people are gave- buying woolen clothes during the summer time, they are going to hill stations. So the seller sees rise in his business. That is sweaters are getting sold more during the month of April, May, June, because in a normal condition, those are the months that people plan to go to northern part of the country. बदलता है। कपूर साहब आदाब, ऑर्डर And डबल thus the कर दीजिए, retailer places bigger order with the factory. पैसे भेज रहा हूँ मैं आपको। और कपूर साहब का बिजनेस स्पीड पकड़ता है। And the factory owner receives more orders, more funds, and he wants to expand his production capacity. And once he wants to expand the production, he creates employment. He gives more employment to people. काम अभी बहुत बढ़ गया है। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रीति अपनी पहली And मंजिल that तक is where पहुंचती this है। girl gets an employment in that factory. And because she gets an employment, she has an income, she can buy her own house now. तो वो एक लोन ले रही है और एक अपना घर खरीद रही है क्योंकि अब उसको नौकरी मिल गई है. और शीतल आंटी की लाइफ एक नया मोड़ लेती है।
अब क्योंकि उसकी बेटी को नौकरी मिल गई है, इन्होंने नया घर खरीदा है, तो घर के लिए नया सामान भी चाहिए, तो उसकी मदर जो है वो शॉपिंग कर रही है. And that is where some people get more employment, क्योंकि नए घर में नया फर्नीचर लगेगा, नया इक्विपमेंट्स लगेगा, नया कारपेट लगेगा. कमाई रूट बदलती है. हाँ हम छोटू की फीस भेज रहे हैं. And so that person is able to earn more and send some money back to his family in Himachal. और छोटू की गाड़ी And the family in Himachal is able to pay the fees for the kids' school education. जिंदगी के हाईवे पे. And this is the same couple who has planned their vacation in Himachal. So just see this frame where, you know, that person who received an income of 1 lakh and planned a vacation is able to finance the fees for this small kid in Himachal. See the rotation of the money. You know, it is just one single transaction. Likewise, in an economy, there are hundreds and lakhs and crores of transactions being done simultaneously, and the money only changes pockets. But जब पैसा पॉकेट बदलता है, लोगों के हाथ बदलता है, तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लोगों के लिए. नाउ इमेजिन दिस पर्सन वुड नॉट हैव प्लान्ड हिज वेकेशन. 1 लाख रुपए का वो रख देता अपने पास, खाली खर्च नहीं करता, तो ये पूरा एक चेन ट्रेल नहीं हो पाता. शायद किसी और जरिए से होता, बट नॉट विद दिस काइंड ऑफ थिंग. Because this person decided to spend money, you know, all these people earned, they expanded, they created new employment, and even the social economic development could take place. So this is, you know, just an illustration of how things work when the money starts flowing in the economy. So currently what we are talking about is a situation where we are underdeveloped. There is a steep fall in our economic growth, but at the same time, we are expected to bounce back. I am talking about India as an economy. We are expected that the economy will see a steep rise in the economic growth. Why? Because we are a very big population. We are a very big population. Certainly, the data is pre-second wave till March. You know, of course, the things might change now that we are in more uncertainty. But nonetheless, whenever we will come out of this pandemic, we are definitely going to see a very steep rise in our economic growth. Consumption बढ़ेगा, ज़्यादा लोग consumption करने के लिए निकलेंगे, और उसके indicators हैं. There are some things which are indicative of this. For example, आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर there has been a huge investment coming in the stock market. So when the investments come in the stock market, of course they are surplus investment. वो एक आम आदमी का या lower income family का नहीं होता है वो, but it is a sign of sentiment. There is a positive sentiment about India as an economy. Whether the investment comes from only rich people, whether the investment comes from foreign institutional investors, or it comes from only a section of society of industries, or it comes from retired people, pensioners who are willing to put their surplus money in stock exchange, it's a sign of positive sentiment. तो ये समझने की जरूरत है कि इंडिया का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द राइज ऑफ द स्टॉक मार्केट, दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द काइंड ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज में आ रहा है, फैक्ट्रीज में आ रहा है. वी आर रिफरिंग टू ऑल्सो वेरी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया. अभी इन्फ्लेशन जो है, प्राइस राइज जो है, वो पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में 5% के ऊपर गया है, 5.2, 5.3 हुआ है, बट मोर और लेस पिछले 2-3 सालों में वी हैव कंट्रोल्ड अवर इन्फ्लेशन एट 5%. अवर करंट अकाउंट डेफिसिट, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस जिसको बोलते हैं, दैट इज वेरी कंट्रोल्ड. इनफैक्ट वो इतना कंट्रोल और किन चीजों में सरप्लस में रहा है कि अवर एक्सपोर्ट इज मोर देन अवर इंपोर्ट, कि अमेरिका ने रिसेंटली इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि वी हैव शोन सम सरप्लस इन अवर करंट अकाउंट. So I'm not saying कि it is a very good sign because import कम हुआ क्योंकि pandemic था, but export बढ़ता रहा at the same time. So it's a partially it's also a good sign, right? Digitalization of economy, thanks to pandemic, also one positive change that has come in, that lot of work culture has got digitalized. Earlier only financial things were getting digitalized, but now even the work culture. अब work culture के digitalization होने से क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि आज कंपनी के पास बॉदरेशन नहीं है, कंपनी को कोई लिमिटेशन नहीं है हायर करने के लिए. आज एक बड़ौदा की कंपनी झारखंड के एम्प्लॉय को नौकरी दे सकती है,
और उसको अपने घर में बिठा के काम करवा सकती है, उसको बड़ौदा लाने की जरूरत नहीं। आज बैंगलोर की सारी कंपनियां लोगों से काम पूरे इंडिया में से करवा रही है, सिर्फ बैंगलोर में से नहीं। लोग बैंगलोर छोड़ के निकल गए बिकॉज ऑफ कोविड, पर वो जहां भी हैं उनकी नौकरियां सेफ है, उनको अप्रेजल मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। सो दिस डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर इज नाउ गोइंग टू बिकम अ नॉर्म। ये पोस्ट पैंडेमिक भी रहेगा। बहुत सारी कंपनीज ने अपनी ऑफिसेज खाली कर दी हैं परमानेंटली। अब वो कह रही है कि हमें वापस ऑफिस लीज पे लेने की जरूरत ही नहीं, लोग अपने घर से ही काम करेंगे। और लोगों को उन्होंने इंसेंटिव दिया है अपने घर में ऑफिस क्रिएट करने का, फर्नीचर का इंसेंटिव, लैपटॉप्स का इंसेंटिव। तो ये तरह की चीजें अब इकोनॉमी में रहने वाली हैं आगे चल के भी। और लास्टली जो गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या ईज ऑफ बिजनेस जिसको हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवनेस पिछले कई सालों में दिखाई है, उसका भी रिजल्ट है कि आज अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना है, नई फैक्ट्री लगानी है या नए लाइसेंसेस लेने हैं, तो अभी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं है, उसको ब्राइब करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑफिसर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की ही जरूरत है खाली। देर इज कंप्लीट और एटलीस्ट 75% रिमूवल ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन फ्रॉम द प्रोसेसेस। तो ये सारी चीजें मैक्रो लेवल पे काम कर रही हैं, ये सारी चीजें इकोनॉमिक लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, पर जिसका नतीजा जो है वो हमको बहुत माइक्रो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है कि आज एक सब्जी वाला भी पेटीएम एक्सेप्ट कर रहा है, पेटीएम से पेमेंट ले रहा है या फोन पे से ले रहा है, और वो अपना बिजनेस कर पाता है बहुत अच्छी तरह से। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उसका वो एकदम से अमीर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट देर आर अपॉर्चुनिटीज। These things have provided much opportunities to these companies. For example, post-pandemic, there have been n number of new startups which have come up in healthcare business, in sanitizers, or in mass manufacturing, in other household and industrial items manufacturing, जो कुछ महीनों में ही खड़े हो गए, कुछ महीनों में ही वो चालू हो गए। कितनी सारी कंपनीज हेल्थ इक्विपमेंट्स बनाने लग गई और उनको लाइसेंसेस की, परमिशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली इंटेंशन और विल की जरूरत है, एंड दे कुड स्टार्ट देयर बिजनेस इमीडिएटली। So those kind of macro changes we are seeing in the economy, and they are promising. So that is where the potential of high opportunities in future seems to be very positive, very lucrative. So वो मैक्रो लेवल पे बात करें। माइक्रो लेवल पे, अपने लेवल पे हमें क्या करना है? ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। आप बोलोगे कि ये तो देश दुनिया में हो रहा है, ठीक है, मुझे क्या फायदा इससे, मुझे कैसे इससे बेनिफिट मिलेगा? तो मुझे इससे बेनिफिट लेने के लिए मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा। आई नीड टू डिस्कवर माई पर्सनैलिटी टाइप, कि मैं कैसा हूं एज एन इंडिविजुअल। हु एम आई रिस्क टेकर, एम आई डिफेंसिव, एम आई गो गेटर, एम आई अ पर्सन हु विल टेक थिंग्स एज इट कम्स। तो मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा कि मुझे बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि मुझे वेट करना है कि कोई फोन आएगा कहीं पे, ईमेल आएगा तो मैं रिप्लाई करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। वो मुझे खुद समझना है अपने बारे में। मैं नहीं कहता कि क्या सही है क्या गलत है, दोनों चीजें सही हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 साल पहले, इंसिडेंटली दिस ईयर इज माई 20th ईयर इन माई प्रोफेशनल लाइफ, इन टीचिंग लाइफ। 2001 I started immediately after I finished my studies. बट जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया 2001 में, अभी मेरा रिजल्ट आया ही नहीं था। उसके पहले एक एडवर्टाइजमेंट आई थी छोटी सी कि केंद्रीय विद्यालय के स्कूल है इधर एयरफोर्स स्टेशन में, केवी स्कूल है, उसमें एक टेम्पररी टीचर की जरूरत थी, आवरली बेसिस पे, पर आवर। और मैंने तुरंत अप्लाई करके इंटरव्यू देने चला गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे टीचर ही बनना है। पर मुझे वो टीचर नहीं बनना था, मुझे स्कूल टीचर नहीं बनना था, मुझे तो यूनिवर्सिटी टीचर ही बनना था। बट आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी इसीलिए क्योंकि मुझे वहाँ ट्रेनिंग मिलने वाली थी, मुझे जॉब के साथ वहाँ पे पढ़ाने का ट्रेनिंग मिला। उसके पहले मेरे पास कोई इस तरह का ट्रेनिंग नहीं था पढ़ाने के लिए। तो आई इंट्रो पढ़ाने के लिए 50 लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने के लिए मुझे कुछ ट्रेनिंग चाहिए, पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके कोई बीएड का प्रोग्राम करूं। तो मैंने एक जॉब स्कूल में ले लिया जो 1 घंटे के हिसाब से मुझे 100 रुपए पे करने वाला था, बट दैट इज फाइन कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है 50 लोगों के सामने खड़े होकर बोलने की, तैयारी करने की। So that is what the first thing I will suggest, that you discover yourself, you try to find who you are
as a person, what is your personality type, how much risk you can take, how much opportunity you want to grab or you want to search, right? अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आपने कहीं काम किया है किसी तरह से, तो आप उसको रिव्यू करो कि आप कितने सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, वही अपॉर्चुनिटी को आप आगे लेके जाना चाहते हो कि आप चेंज करना चाहते हो, आपको न्यू सेक्टर में एंटर करना है, तो आप अपना एक्सपीरियंस रिव्यू करो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो। फिर आप ये मार्केट और इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करो, आप हैंडपिक करो मार्केट को कि आपको बैंकिंग सेक्टर को देखना है, आपको स्टॉक मार्केट को देखना है, आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना है, आपको ऑटोमोबाइल में जाना है, आपको इंडस्ट्री हैंडपिक करनी पड़ेगी। यू हैव, बिकॉज यू कांट कि जो भी मिलेगा वो कर लेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक बीबीए स्टूडेंट है या बीकॉम का स्टूडेंट है या बीएससी स्टूडेंट है, एक बीए स्टूडेंट है, एक बैचलर लेवल का बीटेक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का, जो भी आपके डिसिप्लिन है, आप ये नहीं कह सकते कि जो भी नौकरी मिलेगी मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। यू हैव टू हैंडपिक समथिंग। तो ट्राई टू टेक सम एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ट्राई टू आइडेंटिफाई एन इंडस्ट्री, उसके ट्रेंड्स फॉलो करो, उसमें नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उसमें कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, उसमें कितनी कंपनीज इंडिया की हैं, कितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इसका थोड़ा बेसिक एनालिसिस तो आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। और फिर अपना इंटरेस्ट और अपना स्किल सेट, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है क्या, आपका मार्केटिंग स्किल अच्छा है क्या, आपका इंग्लिश राइटिंग अच्छा है, ड्राफ्टिंग अच्छा है क्या, आपका कंप्यूटर स्किल्स अच्छा है, आपकी पॉजिटिव चीज क्या है जो आप एनकेश कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और फिर अपने लिए एक ऑप्शन की लिस्ट बनाओ 1 2 3 4 5, और फिर उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज मेरे लिए सबसे अच्छी है, इसकी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, या ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है पर ये स्किल मुझ में नहीं है, मुझे कंप्यूटर अभी इतना अच्छा नहीं आता तो मुझे कंप्यूटर में ट्रेनिंग की जरूरत है, या ई कॉमर्स का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है बट सप्लाई चेन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं एक सप्लाई चेन का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता हूँ उसको समझने के लिए। पर वो सप्लाई चेन के सर्टिफिकेशन कोर्स तक पहुंचने के लिए, फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जॉब करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए ये 4-5 चीजें करना जरूरी है। ये पता लगाना जरूरी है कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे अभी क्या आता है और क्या नहीं आता। So once you do this kind of exercise, and it is not difficult at all, आपको कोई भी इसमें डिफिकल्टी होगी नहीं। आप सब इंटरनेट सेवी हो, आप सब इंटरनेट पे टाइम बिताते हो, आप इंडस्ट्री को, मार्केट को डिवाइड करके, सब डिवाइड करके समझ सकते हो, ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, there are huge opportunities coming in banking sector, big time opportunities are coming in banking sector. The reason is that government has put a lot of emphasis on opening bank account. This is post demonetization. 2015 के बाद गवर्नमेंट ने जन धन योजना में और दूसरी स्कीम्स में गरीब से गरीब आदमी को सब्सिडी और बेनिफिट देने के लिए बैंक अकाउंट मैंडेटरी कर दिया है, आधार कार्ड से जोड़ दिया है, तो बहुत लोगों ने बैंक अकाउंट खोले हैं। इससे बैंक के ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया है और बैंक्स काफी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। पर जब हम बैंक के रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, हमारे को क्या ख्याल आता है कि भाई उधर पैसा लेना देना होगा, कैशियर का जॉब होगा, यहाँ कोई लोन बेचने वाले का जॉब होगा, हमको यही जॉब अपॉर्चुनिटीज का ख्याल आता है। प्रियांक आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्रियांक, थैंक यू। तो हमें जो बैंकिंग का जब हम नाम लेते हैं तो हमको लगता है कि यही नौकरियां होती होगी बैंक के अंदर, पर ऐसा नहीं है। अगर आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली वी डोंट रिकलेक्ट, नॉर्मली वी डोंट अंडरस्टैंड, वी ओनली लुक एट द हेडलाइन कि बैंक्स रिक्रूट कर रही हैं, बट हम किसके लिए प्रिपेयर करें, हम कौन सी जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे, दैट तो वी हैव टू फाइंड आउट। These are just few titles, job titles which are there in the banking industry at this point of time, and they need very high rate of manpower. Let me tell you, इसमें बहुत opportunities है। लोन प्रोसेसर के लिए, लोन एनालिस्ट के लिए, क्रेडिट अप्रेजल ऑफिसर के लिए, क्रेडिट एनालिस्ट के लिए, कि बैंक को लोन देना है कि नहीं देना है, ये डिसाइड कौन करेगा। जो भी आदमी लोन के लिए अप्लाई करता है बैंक उसको लोन नहीं देता है, वहाँ एक ऑफिसर है जिसका ये काम है कि एप्लीकेशन का एनालिसिस करे, उसके बिजनेस का एनालिसिस करे, उसके साथ जाए, मिले, उसकी फैक्ट्री देखे, फिर डिसाइड करे कि इसको लोन देना है कि नहीं देना है, उसका पास रिकॉर्ड देखे। अब इसके लिए कोई बीकॉम बीएससी की डिग्री नहीं चाहिए, कोई भी चलेगी, बीए बीकॉम बीएससी बीटेक कोई भी चलेगा इसके लिए। इसके लिए कोई कॉमर्स की डिग्री होना जरूरी नहीं है, इसके लिए खाली माइंडसेट चाहिए, वो स्किल्स चाहिए, उसके बारे में पढ़ा होना चाहिए,
पढ़ा इन द सेंस कि डिग्री के लिए नहीं, जनरल नॉलेज की तरह, कि वो रोल क्या डिमांड करता है। या मॉर्गेज कंसल्टेंट की किसी को अपना फैक्ट्री गिरवी रखनी है और लोन लेना है सामने, तो उसका उसका वैल्यू कौन फिक्स करेगा, उसका वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूअर बोलते हैं, अंडर राइटर बोलते हैं जिसको, कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बैंक में देना चाहता हूँ और उसके सामने लोन लेना चाहता हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं जो बोलूंगा बैंक वो लगाएगी कि बैंक जो बोलेगी वो चलेगा? दोनों में से कुछ भी नहीं चलेगा। देयर इज अ वैल्यूअर, देयर इज अ कंसल्टेंट, जो ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, जो उसकी वैल्यू निर्धारित करेगा, उसके बेसिस पे बैंक मुझे लोन देगी और मुझे वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। रिलेशनशिप मैनेजर, बैंक में लोगों के अकाउंट है, उनसे डायरेक्ट बैंकिंग करना ताकि उनको बैंक में नहीं आना पड़े, और ये जॉब बढ़ने वाली है। लेट मी टेल यू, पोस्ट पैंडेमिक रिलेशनशिप मैनेजर की अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहेंगे कि बैंक उनके घर पे चल के आए, उनको बैंक में भीड़ में नहीं जाना। वो कहेंगे हम इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, हमें एक पर्सनलाइज बैंकर चाहिए, और बैंक उन्हें एक पर्सनलाइज बैंकर देगी कि ये आपका बैंकर का नंबर है, आप आधी रात को भी फोन करोगे तो आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड होगी इसके पास, आपको बैंक आने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल एडवाइजर आप जानते हैं कि जो बैंक को, जो कस्टमर को, क्लाइंट को हेल्प करेगा फाइनेंस संभालने के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स, ऑडिटर्स, तो ये मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कि कोई भी इंडस्ट्री में, जैसे बैंकिंग है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। वो सारे जॉब रोल्स के बारे में हमें पता नहीं होता है, बट वो आपका पहला काम है कि पहले आपने एक बार इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर ली कि बैंक में जॉब करना है, उसके बाद आप जॉब रोल्स आइडेंटिफाई करो कि बैंक में कौन कौन से तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। उसमें आप देखो कि आपका स्किल कहाँ फिट होता है, आप कहाँ पे सूट कर सकते हो, और फिर उसकी तैयारी करो। और उसके लिए आपको ऑथेंटिकेट डेटा की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे इस तरह से, इफ यू गो ऑन द वेबसाइट ऑफ द आरबीआई, तो आपको सारे बैंक्स की लिस्ट मिलेगी। आप देखिए खाली, इसमें ये सारे जो हैं वो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। कितनों कितनों बैंक के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, पर वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। लोकल एरिया बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इतना रिक्रूटमेंट किया है ऑल ओवर इंडिया। स्मॉल फाइनेंस जो छोटे छोटे फाइनेंस करती है, छोटे दुकानदारों को, सब्जी वालों को, चाइनीज की लारी वालों को लोन देती है। बड़ी बैंक नहीं देती उनको लोन, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक देती है। पेमेंट बैंक्स हैं, अभी एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक है। अभी उस तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक में इतना रिक्रूटमेंट है, फोन पे में इतना रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी। ये पब्लिक सेक्टर बैंक में मैं बोलूंगा कि उसका एक अलग तरीका है रिक्रूटमेंट का। उसका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम देनी पड़ेगी, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए अगर साइड में रखें तो अलग बात है। तो इतना रीजनल रूरल बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, और ये सब डेटा आरबीआई के वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ से आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जाओ, उसको ओपन करो, यानी आप ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आप उसकी बैंक पे लैंड करोगे, उसकी वेबसाइट पे जाओगे, और वहां पर आप ढूंढो कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे मिलेगा बैंक, इसमें क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे अगर जाओगे तो थोड़ा सा आप उसमें ढूंढोगे तो आपको करियर्स करके मिलेगा एक टैब। देखो यहाँ पे भी नीचे होगा कहीं पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या करियर्स करके एक टैब मिलेगा, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना सीवी भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि योर सीवी इज ऑलरेडी रेडी, तो आप इसमें डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर देखो ये रहा करियर्स, अगर आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, तो करियर्स में आप अप्लाई करो, आप भेज दो सीवी उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 10, 15, 20, 25 बैंकों को, हाँ, पर आपका सीवी वो एक अलग पूरा टॉपिक है कि आपका सीवी कैसा बना होना चाहिए। वो जॉब रोल डिफाइन होना चाहिए कि आप ऑडिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। पर ये ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्स है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो कि आप क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, अंडर राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऐसा आप सब बैंक को भेज दो अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो उस पर्टिकुलर जॉब रोल के बारे में। तो मैं आपको खाली प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि ये एक प्रोसेस हो सकता है जिसके थ्रू आप बैंकिंग इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हो टू source new opportunities. Similarly, insurance, for example, another big sector which is coming up big way in future is insurance. और ये पैंडेमिक ने इसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। आप मानोगे नहीं, इंडिया में less than 2-3% of population is insured.
जिनका लाइफ इंश्योरेंस है। ये मार्च महीने में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार सबसे ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट किया, यानी सबसे ज्यादा पॉलिसीज भी बेची और प्रीमियम भी सबसे ज्यादा कलेक्ट किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पर वो तो पब्लिक सेक्टर कंपनी। अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी अलाउ किया। 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस में अलाउ किया हुआ। 50 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में है आज की डेट, और बहुत थोड़ा पॉपुलेशन ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ। पर क्योंकि पैंडेमिक में लोगों ने रियलाइज किया कि हेल्थ का कॉस्ट इतना रहेगा, हॉस्पिटल का बिल इतना आएगा, या लाइफ की सर्टेनिटी नहीं है कि अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली किस पे डिपेंड करेगी। ये चीजें जो इतने सालों से समझाने की कोशिश कर रहे थे पर लोग नहीं समझ रहे थे, अभी लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। फैमिलीज ने रियलाइज किया कि अर्निंग मेंबर अचानक से गुजर जाता है और पूरी फैमिली बिखर जाती है। तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कुछ पैसा तो मिलेगा संभलने के लिए। ये तो लाइफ की हार्ड रियलिटी है जो ये पैंडेमिक ने हमारे को एकदम फेस पे मार करके बताया है। या मेडिकल इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल, तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। और अगेन जब हम इंश्योरेंस का नाम लेते हैं तो हमको लगता है कि खाली इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले का काम होगा, एजेंट होगा, ब्रोकर होगा। ऐसा नहीं है, बहुत टेक्निकल जॉब अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। एक्चुअरी इज अ वेरी टेक्निकल कोर्स। स्टैटिस्टिक्स जिसने भी पढ़ा हो वो एक्चुअरी का कोर्स कर सकता है, यानी वो प्रीमियम डिसाइड करती है कंपनी कि कितना प्रीमियम चार्ज करना है। वो ऑफिसर जो प्रीमियम फिक्स करता है, वो लोग जो हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करते हैं, डेथ रेट को स्टडी करते हैं, मेडिकल ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, और बहुत सारे डेटा स्टडी करके वो लोग प्रीमियम फिक्स करते हैं। ये बहुत टेक्निकल जॉब है, तो स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं इसको। पर उसके अलावा के जितने भी जॉब है वो सब जेनरिक है, कोई भी BCom, BSc, BA वाला, BTech वाला कोई भी कर सकता है। क्लेम ऑफिसर है जो क्लेम पास करता है, ब्यूरोक्रेटिक जॉब है वो, तो कोई भी नॉर्मल लड़का या लड़की ये काम कर सकता है। अंडर राइटर्स हैं जो गारंटी देते हैं कंपनीज को बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए जब इंश्योरेंस लगता है। तो इंश्योरेंस आपको ख्याल होगा कि मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सारे के सारे इंश्योरेंस अपॉर्चुनिटीज है। इंश्योरेंस अप्रेजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्टिगेट करता है। किसी ने अभी प्लास्टिक फैक्ट्री में यहाँ आग लग गई है बड़ौदा के पास, तो वो कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम किया, पर इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही तो नहीं पैसा दे देगी ना। कोई इन्वेस्टिगेटर जाएगा फील्ड पे, जाके देखेगा भाई आग कैसे लगी, जानबूझ करके तो नहीं लगाई, कहाँ से लगी, कितनी देर चली आग, आग में क्या क्या डैमेज हुआ। वो जो डैमेज हुआ वो सही में वो सामान था जो बोल रहा है ओनर की वो कुछ और था, और ओनर बोल रहा है नहीं मेरा माल डैमेज हो गया, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा पूरा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा, तभी क्लेम पास होगा। रिटेल इंश्योरेंस जो इंडिविजुअल को मिलता है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो बड़े ग्रुप को मिलता है, कंपनीज को मिलता है, तो उसमें बहुत सारे जॉब रोल्स हैं, बहुत सारे जॉब टाइटल्स हैं। ये तो कुछ मैंने खाली लिस्ट किए यहाँ पे। पर अगर आप इंश्योरेंस में जॉब करना चाहते हो तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या जॉब्स हो सकते हैं वहाँ पे, और IRDA की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ भटकना नहीं है, कहीं पे भी गूगल नहीं करना। इंटरनेट आता है हमें, ये एक बात है, पर इंटरनेट को यूज कैसे करना है ये अलग स्किल है। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग के रिलेटेड कुछ भी हो RBI की वेबसाइट से ही होके जाना है। इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ भी हो IRDA जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, उसके वेबसाइट से होके ही जाना है, क्योंकि अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि फ्रॉड क्या है और जेन्युइन क्या है। तो इसके थ्रू अगर हम जाएंगे तो इसके पास कोर्सेज हैं। IRDA आपको एक्चुअली में कोर्स कराएगा, आपको लोन इंश्योरेंस अप्रेजर की तरह कोर्स कराएगा, उसके अपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, उसको पढ़ के सीख सकते हो। आपको कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रेगुलेटर है वो खुद ही आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है और आपको बताने के लिए तैयार है कि कहाँ जॉब मिलने वाली है, आप अप्लाई करो, इंटरव्यू दो वहाँ पे। तो ये एक जरिया है एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक्सप्लोर करने का और उसमें एंटर करने का। Similarly, stock markets. I'm again coming back to stock markets because not because I believe that it is easy, but it is technical. Actually, it is very technical, but it has got tremendous opportunities. Not as a broker, not as an investor, but in terms of lot of many more job roles. And not politically. I don't want to be politically correct, but still, if you look at the data, then आप लोगों ने स्कैम, जो प्रतीक गांधी की सीरीज है स्कैम, वो आपने देखी होगी अगर, उसका बहुत नाम हुआ था।
तो वो हर्षद मेहता के ऊपर, इट वाज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ लाइफ ऑफ हर्षद मेहता. So in India, stock markets were known as pre-Harshad Mehta and post-Harshad Mehta, because Harshad Mehta changed the entire stock market scenario in India. It made people wealth earner. It made people realize that they can become a wealth earner if they can study, research the data on the company, and then invest after the research. They can also contribute to the wealth of the nation and wealth of themselves. Harshad Mehta also made people realize, the companies realize, that how much potential they have to create wealth for the economy, instead of sitting with all the stocks and not listing it. By listing it, they can create more wealth for their companies. Anyway, that's another part of the thing. But now the stock markets are known as pre-Modi and post-Modi, because it is during the regime of Narendra Modi that stock market went up to 50,000. The Sensex went beyond 50,000, and it will remain now 50,000 and above only. It is not going to come back. That is not going to happen. So again, I'm not talking about Modi or his skill. I'm just using that term to benchmark or to bifurcate the two time periods. The potential of the economy or the prospects of the economy before 2014 and after 2014. That confidence in the economy after 2014 is somewhat different. Whether that person is doing good or bad, that time will only tell. वो तो वक्त बताएगा कि उसने अच्छा काम किया कि नहीं किया. That's a different story. But लोगों का जो confidence है, लोगों का जो इकोनॉमी का जो बिलीफ है, या जो वर्ल्ड मार्केट का जो कॉन्फिडेंस इंडिया में है, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है. और उसकी वजह से there is lot of opportunities coming into not only stock market but related areas also. And how it has become transparent, how it has become corruption free, how it has become more friendly. For example, अगर आज आपको पता है कि नहीं, जैसे जीरोधा करके एक एप्लीकेशन है, और ऐसे कई और एप्लीकेशन है जो आपको आपके मोबाइल फोन में पावर देते हैं कि आप उसके बारे में रिसर्च करो, स्टॉक के बारे में, उसके बारे में पढ़ो, और 100 रुपया भी इन्वेस्ट करके आप स्टॉक खरीद सकते हो. आपको कोई परमिशन, कोई अप्रूवल कहीं से जरूरत नहीं है, और आप अपने रिसर्च के हिसाब से डिसाइड करो आपको कब बेचना है एज अ ट्रेडर खुद. पर वो मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो करो, वो तो तभी करना चाहिए जब सरप्लस पैसा हो. किसी को भी स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए when you have already earned money, you have saved your money, you have met all your required consumptions, and then if you have surplus money, तभी स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए. उसके पहले अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं डालना चाहिए. ये एक मेरी बेसिक सलाह हमेशा सबको रहती है. बट फ्रॉम अ जॉब अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ कंसल्टेंट, स्टॉक एनालिस्ट, दूसरों को हेल्प करने के लिए, यस, बिकॉज देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी. अगर आप आज किसी को गाइड कर सकते हो कि सर आप ये जगह पैसा लगाओ, ये जगह पैसा डालो, इन्वेस्ट करो, तो आप पैसा कमा सकते हो उसके जरिए, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर रिसर्च. तो आप अकाउंट मैनेजर बन सकते हो, आप स्टॉक एनालिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो, आप फंड मैनेजर बन सकते हो, आप ट्रेनर बन सकते हो, ब्रोकर बन सकते हो. तो ब्रोकर सबसे लास्ट है, वो तो लास्ट चीज है. उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे टॉप जॉब रोल्स हैं जो आप कर सकते हो. And again, no the degree or no boundary of any qualification. इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है. इनफैक्ट जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, इंजीनियरिंग और साइंस वाले, दे डू मच बेटर दीज रोल्स देन कॉमर्स स्टूडेंट्स. द रीजन इज कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट्स का एनालिटिकल स्किल ज्यादा अच्छा होता है, उनका टेक्निकल स्किल ज्यादा अच्छा होता है, उनका मैथमेटिकल स्किल ज्यादा अच्छा होता है. एंड दैट इज ऑल रिक्वायर्ड इन दिस. वो सब चाहिए इसके. इसके लिए भी आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स आपको आने चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए. उसके लिए जैसे एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, एनएसई निफ्टी जिसको हम बोलते हैं, एनएसई के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं लर्न करने के. वो अपने खुद सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलाता है, इंटरेक्टिव कोर्सेज चलाता है, उसके अपने मॉड्यूल्स हैं. आप देखो स्टूडेंट मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, आप कोई भी मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हो. बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारों के बहुत नॉमिनल फीस होती है. बट दैट विल, आपको कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री करने की जरूरत नहीं है. आप बीएससी साइंस किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, आप ये एनरोल करो और इसमें से सीखो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है. फिर आपको कैसे टेस्ट लेना है, कौन सा एग्जाम क्लियर करना है ब्रोकर बनने के लिए, फंड मैनेजर बनने के लिए, उसकी सब इंफॉर्मेशन आपको, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर मिलती है. वैसे ही दूसरे भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं. जैसे सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर आपको
फंड मैनेजर बनना है, म्यूचुअल फंड मैनेजर बनना है, तो आपको NISM का सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे ही आपको MP का सर्टिफिकेशन चाहिए, वो एग्जाम आपको पास करनी पड़ेगी। तो वो सब एग्जाम ऑनलाइन होती है। वो एग्जाम आप कभी भी पढ़ाई करके जब आप कॉन्फिडेंट हो तब आपको वो फॉर्म भरना रहता है, और उसको लेकर के आप कोई भी HDFC, ICICI, कोई भी कंपनी के आप AMC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उसमें आप अप्लाई करो, उनकी वेबसाइट पे जाओ और वहां से अपना CV अपलोड करके अप्लाई करो, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैं नहीं कह रहा कि जॉब मिलेगी, मैं कह रहा हूँ आप एलिजिबल बनोगे। अगर आप ऐसे ही BCom, BBA, MBA की डिग्री लेके जाओगे तो नहीं आप एलिजिबल होगे। आपको ये M3 का एग्जाम पास करके ही जाना पड़ेगा, आपको NISM का सर्टिफिकेट लेके ही जाना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर आप अपने CV में डाल दो कि आपने ये पास कर लिया है और फिर आप अप्लाई करो, तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब बढ़ जाती है। यहाँ अगर आपको अपना कंसल्टेंसी खोलना है, आपको अपना अपना ऑफिस खोलना है जिधर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनोगे, आप खुद रिसर्च करोगे, खुद अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करोगे, तो देयर इज ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इंडिया में अभी भी खाली 7 या 8% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में डालती है पैसा, बाकी लोग नहीं डालते, पर बाकी लोग डालेंगे और जल्दी डालना शुरू करेंगे। उससे ये होगा कि डिमांड बढ़ेगी एक्सपर्ट लोगों की, जो एडवाइस करें उनको कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो काम हमको कर सकते हैं, वो काम आप रिसर्च के बेस पे, पढ़ाई के बेस पे आप कर सकते हैं। एक और इंडस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा, वो है ई-कॉमर्स, जो हम सब जानते हैं, पर हम सब एज अ कस्टमर जानते हैं। हम सब अमेजोन से सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, बट उसके पीछे देयर इज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, हमने पता लगाने की कोशिश नहीं की। हमको लगता है डिलीवरी बॉय जो घर आता है वो कोई नौकरी है यार करने की, पर ऐसा नहीं है, वो तो है ही एक नौकरी। लेट मी टेल यू, उसमें बहुत लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, एंड देयर इज नथिंग टू शाय अबाउट। अगर आपके पास एक आपको पेरेंट्स ने मोटरसाइकिल लेके दिया है, एक्टिवा लेके दिया है आपको, और आपका कॉलेज आधा दिन ही चलता है और आधा दिन आपके पास एक्टिवा पड़ी है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस। यू कैन मेक लॉट ऑफ पॉकेट मनी एंड यूज इट वाइजली। बहुत अपॉर्चुनिटी है। एनीवे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर मैनेजर की बात कर रहा हूँ, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO जो होते हैं। ये क्या जॉब होती है अगर आपको मैं समझा सकूं तो, कि जब आप कोई चीज को ढूंढ रहे हैं गूगल में या अमेजोन में, तो कौन से लीड्स पहले आते हैं आपके पास, आपने जो कीवर्ड्स डाले हैं उसके रिलेटेड कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उसके अंदर, उसका कंटेंट कौन लिखता है, उसका कंटेंट SEO लिखता है, उसके कीवर्ड्स SEO लिखता है। कि जैसे ही कस्टमर N95 मास्क डालेगा अमेजोन में, उसको कौन से वाले N95 मास्क पहले दिखने चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो ये जॉब की इतनी डिमांड है जिसकी हद नहीं। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा भी अच्छा है, अगर आपको ग्रामर आता है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने आता है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। इसमें कोई MA इंग्लिश की जरूरत नहीं है, खाली इंग्लिश लैंग्वेज आने की जरूरत है, बट इट इज अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ही बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आज ड्यू टू ई-कॉमर्स इमर्ज हुई है। लॉजिस्टिक डिलीवरी के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर वो सारी जॉब्स आई हैं। और क्योंकि अब तो सारा का सारा ऐप पे शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे अभी सारा मार्केट जो है वो मोबाइल में आ जाएगा, इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर। तो उसके लिए ऐप डेवलपमेंट के अलावा, ऐप डेवलपमेंट के बाद उसको कैसे इंटीग्रेट करना है फैक्ट्री से लेकर के कस्टमर के घर तक, तो लास्ट माइल डिलीवरी अचीव करने तक, there are n number of job opportunities in India today. तो on one side there is a criticism कि भाई ट्रेडिशनल दुकानें बंद हो जाएंगी, सब ई-कॉमर्स हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। there are new opportunities which are coming up over there. आप आज फार्मास्यूटिकल और मेडिकल बिजनेस में देखो, आप एक रिटेल दवाई की दुकान में जहाँ से आप दवाई खरीदते थे पहले, वहां से दवाई खरीदना और मेड कार्ड से खरीदना या मेड लाइफ से जो ऐप है उससे खरीदने में कस्टमर को बहुत फर्क है। ना ही सिर्फ डिस्काउंट उसको मिल रहा है, पर उसको डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है, कोई लाइन में खड़ा नहीं रहना है, रिस्क नहीं है कहीं जाने का, पैक होकर दवाई घर पे आ जाती है। ये बढ़ने वाला है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ। पैंडेमिक चले जाएगा उसके बाद भी ई-कॉमर्स इज ट्रिमेंडसली गोइंग टू ग्रो। तो अगर आप अभी उसके लिए तैयारी करो, क्योंकि तैयारी लगेगी, इसके ओरिएंटेशन लगेगा, इसके लिए कि बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए आपको BCom, BSc, BTech के बाद एक एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा इसके लिए, या वेब डेवलपर का एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा आपको। तो इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन दैट डायरेक्शन, सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज। सो माय ओनली आइडिया इज दैट ये अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करेंगी, आगे भी करेंगी, और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज में भी करेंगी।
मैं सारे इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं बोल सकता अभी इस वक्त, बट आई एम ओनली हेल्पिंग यू कि इस तरह से आप उस इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि भाई उसमें कौन कौन से जॉब टाइटल्स हैं और उसके लिए मुझे क्या क्या तैयारी करने की जरूरत है। और वो तैयारी करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर से एडमिशन नहीं लेनी है हमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर या नवरत्ना यूनिवर्सिटी में फिर से वापस लौट के आने की जरूरत नहीं है। एक बार डिग्री कर ली तो कर ली, उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज, कॉर्सेरा, लिंक्डइन, ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। इधर जाकर के आप ढूंढ सकते हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। इधर जाके आप पता लगा सकते हो कि क्या सर्टिफिकेशन कोर्स करने हैं। ये लोग खुद सारे सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, ये खुद हेल्प करते हैं आपको ये जानने के लिए कि व्हाट आर योर स्किल्स एंड हाउ यू कैन एनहेंस दोस स्किल्स। आप देखो ये फरवरी और मार्च में, एक महीने के अंदर, एज पर द लिंक्डइन, जो सबसे टॉप मोस्ट जॉब पोस्ट पोर्टल है आज की डेट में लिंक्डइन का, और मैं पटेल सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कोई सेशन बच्चों को लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के ऊपर कराइए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एवरी स्टूडेंट हैज टू बी देयर ऑन लिंक्डइन and needs to understand that how to use LinkedIn to connect with the people from that industry. If I want to work in pharmaceutical industry, or if I want to work in particular social media industry, then I need to connect with those people. I need to follow certain people कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मुझे भी क्या करना है। तो लिंक्डइन पे रहना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पे रहने से कोई फायदा नहीं, फेसबुक पे रहने से कोई फायदा नहीं, पर लिंक्डइन पे रहने से फायदा है। तो लिंक्डइन का डेटा है ये। आप देखो रिसेप्शनिस्ट की जॉब, जो हम समझते हैं कि बहुत छोटी सी जॉब होती है, but there is huge jump in that. Tech specialist, pharmacy technician, marketing strategist, मार्केटर नहीं, मार्केटिंग यानी जो डोर टू डोर घंटी बजा के बेचता है वो नहीं। मुझे आज भी ये तकलीफ होती है जब एमबीए का एडमिशन चालू होता है, तो आप मानोगे कि आज की डेट में भी मेरे पास पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं कि सर एमबीए करना है पर मार्केटिंग नहीं करना है, क्योंकि वो मार्केटिंग का यही मतलब समझते हैं कि बेचना सामान। अरे भाई वो नहीं है मार्केटिंग का मतलब। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने का जॉब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी अपॉर्चुनिटी टुडे। टेलर जो बैंक में पैसा देता है, वो टेक्नीशियन, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, अकाउंट स्पेशलिस्ट, ये टॉप 10 इस तरह के जॉब्स हैं। आप देखो, ये देखो, ये मार्च के महीने के हैं रोल्स जिनकी मैक्सिमम डिमांड ऑल ओवर थी। इसमें सेल्स पर्सन भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है, वो तो अपनी जगह पे रहेगा ही, बट जैसे कि दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन फाइंड आउट कि क्या करना है और कहाँ से उसके बारे में सीखना है। हाँ, कुछ भी आप कर लो, सम जो मैंने शुरू में कहा कि बेसिक होमवर्क तो आपको मालूम होना चाहिए, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। यू शुड बी गुड एट राइटिंग और स्पीकिंग, दैट हैज टू बी देयर। If a person is unable to communicate today, then it is difficult to find an opportunity. You have to be very very good communicator, and I know that Yuvalaya is doing extremely good job कि इतने सारे trainers, soft skill trainers and दूसरे trainers इधर आते हैं जो आपको help करते हैं अपनी communication skills improve करने के लिए। Computer skill is something that is very very mandatory. You have to sit with your laptop, you have to sit with your computer for a while and learn the tricks. और तीसरा सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, जिसमें मैंने कहा जैसे कि उसको बिजनेस के लिए, आप इंस्टाग्राम भी करो पर उसको बिजनेस के लिए यूज करने के लिए अगर आप कर रहे हो। एज फार एज द बिजनेस आइडियाज इज कंसर्न, मैं आपको एक वीडियो केस दिखाता हूँ। Just tell me if audio is not available. तुला राशि, मंगल भारी है, ये ध्यान एडवर्टाइजमेंट है। दे तो मुश्किलें टल सकती है। So this is a girl, she is a 20-year girl. Today she is 20 year. 2-3 साल पहले जब इसने बिजनेस शुरू किया था, she must be 17 or 18 or so. So this is from Mumbai Mithibai College, a student, and she has started her own startup. थोड़ा सा मैं आपको उसका पोर्शन सुनाऊंगा। I'm Leher Ali. I'm the founder and CEO of Almari. So I'll tell you a story. It's like a fact that happens with most of तो us. इसका एक बिजनेस स्टार्टअप है अलमारी, अलमारी उसका नाम है। So one day I had to attend a function and I was searching for an occasional wear. As the case with most of us ladies, I couldn't find it since
all my premium outfits are stuffed into suitcases. They're kept under the bed or on the cupboard or something like that. So I'm sure everybody faces that problem. That was the time I wished that I had a space where I could keep all my occasional wears and they could be delivered to me whenever I need them in a ready-to-wear condition. My mind went eureka. I decided to start up my own business. So Almari, it is a service where you can preserve all your premium garments and accessories and they can be delivered to you in a ready-to-wear condition whenever you need them. When I started this business, I'll be honest, I did not think about the future, how this will go, what will happen. I did not think. I just made up my mind and put my plan into practice. I'm 18, so I did not have any issues related to lack of ambition or any fear of failures. Because I'm just 18, this failure would be a learning for me, in fact. Also, this is not just me. This would have not been possible if I did not have such fantastic family who all. So, if you could understood, she was talking about a problem that she faced कि भाई एक बार उसको नए कपड़े पहनने थे और उसके पास कपड़े नहीं थे, वो खराब थे, प्रेस किए हुए नहीं थे, एंड शी रियलाइज कि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज मुंबई जैसे शहर में है जो छोटे घरों में रहती है, जो महंगे कपड़े खरीदते हैं पर फिर 1-2 साल के बाद जब उनको चाहिए होते हैं तब वो खराब हो चुके होते हैं. तो शी स्टार्टेड दिस लॉकर डिपॉजिटरी. अलमारी इज अ डिपॉजिटरी सर्विस कि अगर आपके पास महंगे कपड़े, जूते, पर्सेस हैं तो आप अपने घर में रखने की जगह नहीं है अच्छी तरह से उसको, तो आप उसको डिपॉजिट कर दो इनके पास और फिर जब भी आपको चाहिए वो आपको डिलीवर करेंगे प्रेस करके अच्छी तरह से तैयार, ताकि आप यूज कर सको. अब ये समझने में तो बहुत सिंपल सी चीज है बट ये प्रॉब्लम सॉल्वर. तो जब हम बिजनेस आइडिया की बात करते हैं तो बिजनेस आइडिया शुड ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कि हर बार साइंटिफिकली कोई नई चीज इन्वेंट नहीं की जा सकती, तो इनोवेट ही करना है, इनोवेशन ही करना है और इनोवेशन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस से आए या किसी और के एक्सपीरियंस से कि अच्छा ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो सॉल्यूशन में एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है. So that is what this girl did and now her idea is because उसने तो ऐसे ही शुरू किया, उसने कोई उसका पैटेंट या कुछ कॉपीराइट नहीं कराया. Now it has been replicated by several people across India. और कितने लोगों ने अपने अपने शहरों में इस तरह के डिपॉजिटरी शुरू कर दी कि आप महंगे वाले जूते अगर आपने खरीदे हैं और आपको रोज रोज नहीं पहनने, आप डिपॉजिट कर दो, जब आपको चाहिए आपको डिलीवर कर देंगे आप ही के जूते और वो उसका चार्ज करेंगे. So एंड अगर मैं पिछले कई टाइम से देख रहा हूँ कि जिन बिजनेसेस में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वन इज डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी. इतनी सारी कंपनीज हैं अभी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हेल्प करती है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बिजनेसेस को हेल्प करती है. यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी इफ यू हैव द ग्रिप ऑन सोशल मीडिया. अगेन मैं बोलूंगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ डील करते हो, वो चीज से कोई फायदा नहीं, पर आप ये पता लगाओ कि इंस्टाग्राम पे किसी का बिजनेस ग्रो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कैसे किसी को हेल्प कर सकते हो कि दे कैन वाइड देयर बिजनेस, दे कैन वाइडन देयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन इंस्टाग्राम. अगर आज मुझे कोई चीज बेचनी है और मेरा मार्केट अहमदाबाद से लेके सूरत तक का है तो इंस्टाग्राम पे मुझे उसको एडवर्टाइजमेंट कराना है कि 18 ईयर्स से 20-25 ईयर्स के जो यूथ है, जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और जो अहमदाबाद से सूरत के बीच में रहते हैं, उन सबके पेज पे मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए. ये मुझे करवाना है. क्या आप करवा के दे सकते हो मेरे को? ये मुझे नहीं आता कैसे करते हो. मुझे सिर्फ इतना पता है कि अहमदाबाद से सूरत तक वाले लोग खरीदेंगे ये, और मुझे ये पता है कि 18 से 25 साल की उम्र वाले लोग खरीदेंगे. अब मुझे उन तक पहुंचना है. अगर आप मेरे को ये करवा के दे सकते हो, यू गेट अ कमीशन. और आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने मोबाइल पे ही काम करना है. इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है. क्लाउड किचन में देयर हैज बीन इमेंस अपॉर्चुनिटी. लोगों ने इतना क्लाउड किचन किया है कि लोग घर में खाना बनाते हैं पर उन्होंने अपने खाने को लिस्ट कर दिया जोमेटो पे, स्विगी पे, और वो खाना उनके घर से पिकअप होता है. क्लाउड किचन है. किचन कहीं और है. रेस्टोरेंट्स ने क्लाउड किचन को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है. जिन रेस्टोरेंट्स की डिमांड बहुत होती है खाने की, वो खुद नहीं बना पाते हैं, वो उसको आउटसोर्स कर देते किसी और के पास, जिसका नाम नहीं पता किसी को. बिकता खाना रेस्टोरेंट के नाम पे पर बनता कहीं और पे है, किसी और के पास. ऑर्गेनिक होम फार्मिंग की इतनी अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक
चीज़ों की इतनी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों ने अपने छतों पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया हुआ है, अपने टेरेस को लोग यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कोई इनको हेल्प करे, गाइड करे। इतनी कंपाउंड में जमीन है कि उसमें खेती करना चाहते हैं लोग, पर उनको आता नहीं कैसे खेती करते हैं। फार्मर तो गांव छोड़ के आएगा नहीं सिखाने के लिए, पर आप और मैं कर सकते हैं ये काम। अगर हम थोड़ी खेती सीख के आ जाएं और यहाँ आकर के लोगों को हेल्प करें, वी कैन मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। होम यूटिलिटी सर्विसेज के लिए अर्बन क्लैप, आपने सुना होगा ना, अर्बन क्लैप घर आके एसी साफ करेगा, घर आके पूरा घर साफ करेगा, मेकअप करके देगा, क्या नहीं करके देगा। तो इस फर्नीचर रिस्टोरेशन जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है बिजनेस में, वो है फर्नीचर रिस्टोरेशन। लोग पुराना फर्नीचर निकाल के नया खरीदते हैं, पर पुराने ही फर्नीचर को रिस्टोर करना, क्योंकि कारपेंटर मिलता नहीं लोगों को अच्छा। तो कितनी कंपनीज अब आ गई हैं जो फर्नीचर रिस्टोर करती है, कि लोगों का जो पुराना है उसी को रिस्टोर करके उनको देते हैं, नया बना के देते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से हम नए बिजनेस आइडियाज को ढूंढ सकते हैं।